and today I'll share how to start preparing for FMG or next from first year of your MBBS degree. So it's totally a myth that but true is your foundation actually built in first and second year. मुझे ये डर है तो मैं start ही ना करूँ. You have to do histology and embryology along with that general anatomy. But सबसे ज़्यादा awkward चीज़ ये है FMG और next की जो tension होती है ना वो सिर्फ दो टाइप के स्टूडेंट को होती है, या तो वो बिल्कुल एंटर करें एमबीबीएस में लाइक फ्रॉम फर्स्ट ईयर, या फिर वो बिल्कुल एंड में फ्रॉम सिक्स ईयर. बीच में इंसान एंजॉय ही करता है. Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. You all are watching Rosie Chaudhary, a second year MBBS student in Samarkand State Medical University, Uzbekistan. And if you are fresher and worrying about FMG and next, then this video is for you. And today I'll share how to start preparing for FMG or next from first year of your MBBS degree or even from second year of your MBBS degree, as I am in third semester in abroad MBBS in Samarkand State Medical University, Uzbekistan. Generally, when you are doing MBBS in abroad, so you can hear a lot of students saying, or a lot of students or seniors saying, you just don't have to prepare for FMG or next from first or second year, but it's totally wrong. Even my seniors also told me that we don't have to prepare from first year or second year. It's actual that we don't have to prepare from first and second year, but we have to study continuously for that exam. So it's totally a myth that we have to prepare for FMG exam from last year or from fourth and fifth year and we have to enjoy from first year. It's totally wrong. But true is your foundation actually built in first and second year. Like if you will study in first or second year, you can generate or build a habit of study. But in first and second year, if you ruin your study pattern in first and second year, it actually affect your future life. Like you can't study properly and continuously for 4 and 5 hours when you are preparing for FMG exam even in future, like in fourth and fifth year. So you have to study from first and second year. It's compulsory. If your basics are strong, then final year preparations become so easy and it will become a revision. You don't have to be panic in the final year. So start preparing from first year and I will give you the idea how can you prepare from first year. And I genuinely know that if I will clear my next exam or FMG exam in first year if I am preparing from now on, but I have some motivation that I have to start from first year or second year. I don't know if I can clear that exam or not. Maybe मैं ना अल्लाह ना करे, maybe मैं first or second attempt में clear ना कर पाऊँ, तो it doesn't matter कि अगर ये डर है तो मैं start ही ना करूँ. So if you are a abroad MBBS student, तो abroad में first semester में the only important subject is anatomy. There is no biochemistry and physiology in first semester, but these are in second semester and third semester also. But according to me, you have to start preparing these all three subjects according to India if you are living in abroad also, because there is not such studies that you can clear your FMG or next exam with these universities exam or these universities preparation in abroad. So you have to prepare in your room, like you have to do the self study from first year. Okay, so start preparing anatomy, biochemistry and physiology from first semester, or if it's not possible, just prepare anatomy from the first semester. No need to do physiology and biochemistry, but prepare on anatomy from first semester. You can do your biochemistry and physiology from second semester. Even I did that also. But in first year, there is not only general anatomy. You have to do histology and embryology along with that general anatomy. So there are mainly three subjects. In first year, if you are panic, you can do only anatomy, and that anatomy includes general anatomy, physiology and biochemistry. So these three subjects you can do in your first year, and the further like physiology and biochemistry you can start from second semester. That's I did. First, I will tell you the source of anatomy to start from first semester. The source is I just watched the Dr. Asif Qureshi lectures from first semester that are present on YouTube. Because in first semester I don't have any idea कि ये Telegram वाला system भी होता है. So I just start preparing from YouTube because I didn't wanted to waste my time कि प्लेटफॉर्म यूज़ करने पे. जैसे जैसे टाइम निकला वैसे मुझे पता चला कि यहाँ टेलीग्राम पर भी वीडियोस होती हैं. सो इफ़ यू नो फ्रॉम राइट नाउ एंड इफ़ यू नो
at this time you can prepare from prep ladder or Marrow, and if you don't know this you can start from YouTube. That is Dr. Asif Qureshi. He is the best teacher on YouTube. I think he is best teacher on YouTube, और वो प्रॉपर BD चौरसिया बुक को रीड करते हैं, सारे डायग्राम्स एक्सप्लेन करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताते हैं. ये क्वेश्चन नेक्स्ट में आया था, दिस क्वेश्चन FMG में आया था, USMLE, ये सब चीज़ें वो 100% बहुत अच्छे से बताते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं, निमोनिक्स बताते हैं, याद करने में ईजी होता है. हिज स्टडी पैटर्न, हिज स्टडी स्टाइल ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड. लाइक इट्स एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ा था और एनाटमी वहाँ से बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है. इफ़ यू डोंट नो दैट वी हैव टू स्टडी जनरल एनाटमी और नॉट लाइक बुक ऑफ प्रॉपर जनरल एनाटमी, or we can start from first volume, second volume, or we have to read the general anatomy. And if you know the basic, like you know lateral, posterior, caudal, cranial, and know about the every bone, about every landmark, so you can start from first volume. But if you don't know, you have to read the general anatomy also. General anatomy will helpful for you for further reading the volume. Starting में start watching the Dr. Asif Qureshi lectures, proper notes बनाओ. नोट्स का आइडिया की आपको ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ाते हैं ऐसे, यू कैन ऑटोमेटिकली गेट आइडिया कि हमें किस तरीके से नोट्स बनाने हैं. सो वॉच दिस लेक्चर्स, प्रिपेयर योर नोट्स, और नोट्स बनाने के बाद एक बार उनको रीड कर लो. ठीक है, दैट्स इनफ फॉर एनाटमी. और एक बार अपनी जनरल एनाटमी से सारी बोन्स को देखना, एक्चुअल में प्रैक्टिकली बोन्स को एक्चुअल में देखना, सारी मसल्स, सारी नर्व्स, एटलस लेना, अलग अलग सोर्सेज से सारी इन्फॉर्मेशन लेना. दैट्स इनफ फॉर एनाटमी. अभी सिर्फ पढ़ो और सिर्फ समझो, लेकिन एंड टाइम पर लाइक फ्रॉम 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, उस टाइम से एक्चुअल रिवीजन स्टार्ट करना. आप अभी सिर्फ समझ लो, दैट्स इनफ. इससे क्या होगा कि आपकी आदत बन जाएगी कि हाँ पढ़ने की. बट अगर इन फर्स्ट से सेकेंड ईयर आप ये टाइम वेस्ट करोगे तो लिटरली आपको लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, कोई चीज़ याद नहीं रह पाएगी और आदत ही नहीं होगी इतने टाइम बैठने की, बैठकर पढ़ने की. सो आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर. दैट्स बेस्ट आइडिया. और जो सीनियर्स बताते हैं कि नहीं 4th ईयर से पढ़ो, 5th ईयर से पढ़ो, टोटली वेस्टेड है. ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्टार्टिंग से पढ़ो. देखो अगर आपने ना पढ़ा तो वो आपके लिए बहुत परेशानी होगी, लेकिन अगर आप पढ़ लोगे और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो इट डजंट अफेक्ट यू. और इफ़ यू आर डूइंग एनी सब्जेक्ट तो डिजीजेस पर ज़्यादा ध्यान देना. लाइक किस चीज़ की इंजरी से क्या अफेक्शन हो रहा है, क्या पैथोलॉजी क्या है उसकी, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना. ठीक है, लाइक विंगिंग ऑफ स्कैपुला है, मतलब हर बोन के फ्रैक्चर का उसका नेम, इन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स पर ज़्यादा फोकस करना. तो स्टार्टिंग में यू डोंट नीड टू डू एट दिस लेवल ऑफ स्टडी के सारे MCQs लगाए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई करनी होती है और इतना टाइम ऑब्वियसली एक MBBS स्टूडेंट के पास नहीं होता. तो स्टार्टिंग से आप सिर्फ लेक्चर्स देखो और लेक्चर्स करने के बाद एक बार बस वो रीड कर लो जस्ट. तो दैट्स इनफ. ये MCQs अभी नहीं लगाने, वो 4th 5th ईयर में करना है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना. और बेसिक चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ है, सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड चीज़ ये है कि जो FMG और नेक्स्ट की जो टेंशन होती है ना, वो सिर्फ 2 टाइप के स्टूडेंट को होती है. या तो वो बिल्कुल एंटर करें MBBS में लाइक फ्रॉम फर्स्ट ईयर, या फिर वो बिल्कुल एंड में फ्रॉम 6th ईयर. बीच में इंसान एंजॉय ही करता है. नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट मुझसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ फ्रेशर आर आस्किंग कि अभी जस्ट मेक अ वीडियो कि हम FMG और नेक्स्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें. और आई कैन सी कि यहाँ पर सिर्फ 6th ईयर के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ये 2 टाइप के बच्चे मुझे पढ़ते हुए दिख रहे हैं. बीच के तो अब्रॉड में एंजॉय कर रहे हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि हमेशा पढ़ते रहो. इवन मेरा भी इस टाइम पर ऐसा मौसम हो रहा है, इस टाइम मेरा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट मैं दिन में एक लेक्चर देख लेती हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पढ़ते रहो पूरे दिन. अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी अच्छे से लेकर चलो. ऐसा ना हो कि सेल्फ स्टडी में इतने हो जाओ कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए आप फेल हो रहे हो. यूनिवर्सिटी के लिए पास हो जाओ, दैट्स इनफ. लेकिन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स क्लियर करने के लिए भी पढ़ो और सेल्फ स्टडी भी करो. और एक मेन क्वेश्चन होता है, एवरीवन आर आस्किंग के हमें दिन में अपनी सेल्फ स्टडी की पढ़ाई के लिए कितने घंटे देने चाहिए, लाइक कितने आवर्स और कितना टाइम देना चाहिए. तो इट डजंट मैटर कि कितना टाइम देना चाहिए, आपका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए पर डे का.
मैं ऐसा नहीं करती कि आज मुझे 2 घंटे बैठना है, 2 घंटे पढ़ लिया, ख़त्म, बुक बंद, ऐसा नहीं होता। आई जस्ट हैव वन थिंग इन माई माइंड कि आज मुझे एक लेक्चर देखना है या फिर आज मुझे 2 लेक्चर देखने हैं, डजेंट मैटर अगर वो 5 घंटे में ख़त्म हो रहा है। तो अपना गोल सेट करो, टाइमिंग सेट मत करो, और प्रॉपर अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दो, अपनी स्किन पर बहुत अच्छे से ध्यान दो। लाइक फिजिकली भी फिट रहो, यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जिम्स हैं, प्लीज़ गाइज बस फिजिकली फिट रहो और मेंटली भी फिट रहो। फिजिकली फिट रहोगे तो ऑब्वियसली मेंटली भी इट एनहांसेस योर पावर। एंड वन थिंग टू पॉइंट कि अगर आप सिर्फ बुक रीड कर रहे हो ना, तो वो टोटली टाइम वेस्ट है, क्योंकि अगर सिर्फ इंसान बुक ही रीड करता तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, सब बुक्स अपने घर पर लाकर पढ़ लेते। यू नीड लेक्चर्स और प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ करी थी एंड इट टोटली वेस्टेड माय टाइम। मैंने फिजियोलॉजी की, जीके पाल की पूरी बुक रीड कर ली है एक्चुअल में, लेकिन मुझे अब मैं देखती हूँ तो लेक्चर्स ज़्यादा हेल्पफुल है। लेक्चर्स में वो जो पढ़ा रहे हैं आई फील लाइक ये तो मैंने पहली बार पढ़ा है। तो बुक रीड करना एक टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। लेक्चर्स देखने के बाद बुक रीड करना ये बहुत अच्छा है, मतलब लेक्चर्स देखो आप, उसके बाद बुक रीड करो, उसके बाद मार्क करो, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बुक रीड से काम नहीं चलेगा कि आपने बुक रीड कर ली दैट्स इनफ, तो बुक रीड का कोई फ़ायदा नहीं है। और योर फर्स्ट ईयर कम्प्लीटेड और एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेम के एग्जाम आपके जनवरी तक एंड हो जाते हैं। From Feb, your new session start, like your new semester start. So if you are 2025 September intake, your new session, your second semester start from Feb onwards. आपके जनवरी तक सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करना फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है वो मे बी एंड होगा फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ जून, और स्टार्टिंग ऑफ जून में एंड हो जाएगा। एंड योर सेकेंड सेमेस्टर और योर फर्स्ट ईयर एंड मे बी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ जून, और आप मिड जून तक घर चले जाओगे। एंड फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ सितंबर, फ्रॉम स्टार्टिंग वीक, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और इन दैट हॉलीडेज यू हैव टू परफॉर्म द 1 मंथ ऑफ इंटर्नशिप, जिसका यहाँ पर आपको आकर एग्ज़ाम देना होता है, प्रैक्टिकली एग्ज़ाम, रिटन एंड वाइवा, ऑल दिस। एंड फॉर डेली बेसिस आपके वाइवा हो रहे होंगे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ एनी सब्जेक्ट डेली बेसिस पर आपके जो मार्क्स लगते हैं वो एट द एंड ऐड होंगे, एंड यू गॉट द परसेंटेज ऑफ द ईयर और ऑफ द सब्जेक्ट। सो डेली क्लासेस में भी यू हैव टू बी अटेंटिव, ओके। एंड गाइज प्लीज़ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को इतना ज़्यादा ईजी मत लो, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर यूनिवर्सिटी स्टडीज़ ऑल्सो एंड क्लियर योर एग्जाम्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आप फेल हो रहे हो तो वो इस चीज़ के बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे बच्चों को फेल करना है यहाँ पर, तो प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर यूनिवर्सिटी। सो डोंट बी फेल इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट, प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, इसको इतना इजी मत लो। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, so like this video, and if you have any questions regarding all these, like how can we prepare for FMG or next, you can ask in the comment section, I will surely reply. And if you have any question, don't be hesitate to ask, I will inshallah reply if I got a time, as I am here only to help you, just to help you. Of course I want my YouTube channel to grow, but I am also helping you, I am guiding you. And if you need any source and something informative, you can comment, just comment, I will surely reply inshallah. Books and which books are necessary for these subjects, तो एनाटॉमी मैंने BD चौरसिया से करी है, एंड जो फिजियो की बुक मैंने रीड करी वो जीके पाल की रीड करी है, बट अगर मैं लेक्चर्स देखने के बाद वो बुक रीड करती वो ज़्यादा हेल्पफुल होता, बट दैट्स ओके। जीके पाल की बुक भी अच्छी है, एंड दैट्स इट। एंड बायोकेमिस्ट्री आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रेप लैडर, टेलीग्राम पर वीडियोज़ आती हैं, एंड उसका सोर्स क्या है, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी लाइक फ्रॉम गुलिस्तान यूनिवर्सिटी, ऑल्सो समवन इज आस्किंग फ्रॉम मी, तो इफ़ यू आर फ्रॉम गुलिस्तान यूनिवर्सिटी, समरकंद, ताशकंद, बुखारा, एंदीजन, फरगाना, and if you're from any university, so ask from senior that how can we get the telegram videos. You can get it for free or maybe for 2000 to 3000 rupees. I got it for free one channel, but for actual or modified version, like right now it's prep ladder X, so you can got this video on telegram
for 1500 or 2000 rupees from your seniors also. So got that channel, watch your lectures, prepare notes, then read your books. That's enough. That's all guys, that's it. If you have any queries, so comment down, and thanks for watching. Do subscribe my channel. Allah Hafiz.